Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you again to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, Conexia High Flyers is one podcast where we get you emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies, so that all of us can understand, the company's business model, their growth journey, their future growth plans. And in this process, we get a lot of valuable information from the promoters, the top managements of such companies, which help all our investors to take a very conscious investment call. And friends, today we are going to talk about another interesting company which operates in a very interesting space and which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Infinity Infoway Limited. And we have the privilege of having Mr. Bhavesh Kumar Dheeraj Lal Gaderia, Managing Director. भावेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर योर टाइम. और सर, मुझे पूरा यकीन है, छोटे से इंटरव्यू में सही, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आप हमको आपके कंपनी के बारे में हम सभी को बताएंगे. Thank you so much, Avinash ji. Definitely, we'll share as much possible the informations we can share. ठीक. तो भावेश जी, पहली बात मेरे को थोड़ा सा आपका बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए. आप सैस कंपनी हो, आप बिजनेस उस मॉडल में करते हो. तो एक्चुअली सर, जब हम सैस मॉडल की बात करते हैं तो सर हमारा कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट में हमारा डोमिनेंस है या जहाँ पे ज्यादा हम काम करते हैं, और सर कौन कौन से सेक्टर्स के लिए हम काम करते हैं वो बताइए. और सर, ये बिजनेस जर्नी आपने कैसे शुरू की? क्या ये कंपनी आपने शुरू की, फर्स्ट जनरेशन वाली कंपनी है, क्या ये पिताजी के टाइम की थी, आपने उसको आगे टेक ओवर किया? तो सर थोड़ा सा इसके ऊपर आपके बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए कि आपने ये बिजनेस में कैसे प्रोग्रेशन किया, उसके बारे में बताइए. ओके, सो विनाश जी, मैं पहले आपका सेकंड क्वेश्चंस का पहले आंसर करता हूँ कि माय जर्नी, देन विल मूव टू द कंपनी प्रोडक्ट. So, sir, basically, I have done my engineering in 2004 in information and technology. Then I have done my MBA, and in around 2006, I have done 6 to 7 months job into the company on Tata AIG for TCS payroll. So, while doing a journey of the job, we realized that let's move to the business. So, I got ideas being a IT engineer. So I started my business in software development and website development for outsourcing work. So in 2008, I registered a company and started my first business on that line. So this is my first generation business. I have started entire journey of this, and from beginning in my mind when I was in childhood, mera point was very clear that in future I will do only a business. So being a Gujarati, being from Rajkot, I always love to do a business on this opportunity. Now, coming to the my journey in business in Infinity. So 2008, we have started a service. Then step up, we grown. So we realized that the scaling a service business will be a little bit difficult. So I started making a product, and by making a product, first we choose into the education field. So currently our ERP solutions is there. In ERP solutions, we completely SaaS company, software as a service we provide, and our currently expertise area is education field. In education, maybe specifically, we are currently serving major market share of higher education and university. So in higher education, colleges and university. And second, we provide a ERP solution to the industries. So far, manufacturing industries, we have implemented our solution in a cement, ceramic, FMCG, architectural product, engineering products. So these are the various areas we have implemented our ERP solutions. And in educations, we have one more SaaS product, that is online exams. So it is part of ERP also, and independently online exams is using into many of the institutes. So students can give exams online with the MCQ based questions, and we have a on that AI is applied for a verification of front end. The students are not doing a malpractice or something. So the AI monitoring proctoring exams we have. So these are the core areas where our major revenues is coming on that. नहीं, ठीक है.
भावेश भाई बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। भावेश जी मुझे बताइए कि अभी एजुकेशन यानी कैंपस एजुकेशन में हमारे कौन-कौन से कस्टमर्स होंगे? यानी मुझे थोड़ा पूछना है कि वेदर इट इज़ स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ या ट्रेनिंग यस। इंस्टीट्यूट, कौन-कौन से सेगमेंट्स में आप प्रेज़ेंट हो? और सर मोटा-मोटी हमने जो टर्नओवर अभी रिकॉर्ड किया है, उसमें हम कितने कस्टमर्स अभी एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं? Correct. So, sir, as a general statistics, if I'll share with you that as of now, हमारा 9 स्टेट में प्रेजेंस है, जहाँ पे हम कस्टमर्स मेजर हमारा यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस आर टॉप कस्टमर्स, एंड वेरी फ्यूज आर द स्कूल, बट मेजर चंक इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेजेस। हम specifically 38 plus university we are catering currently in across the India. Major part is in Gujarat and Maharashtra, and very few from other state as well as. Second, हमारी इंडस्ट्री जीआरपी है, दैट इज इनटू रनिंग इनटू 11 वेरियस इंडस्ट्रीज क्लाइंट्स वी हैव, एंड वो जो एरियाज है जहाँ पे हमारा क्लाइंट्स बेस चलता है। ऑनलाइन एग्जाम्स जो हमारी है, दैट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कैन यूज दैट सॉल्यूशन। सो इनिशिएटिव भी है, कॉलेज भी है, स्कूल भी है, एंड कोचिंग क्लासेस भी कुछ है, और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है जो उनके रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए भी यूज करते हैं। नहीं, ठीक है। भविष जी अभी मेरे को बताइए ये जो SaaS प्रोडक्ट हम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और का बेसिकली इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को आप ईआरपी देते हो। मुझे बताइए सर हाउ डज़ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क? क्या आपका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है या इससे भी लंबे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? बेसिकली SaaS का मतलब बेसिकली इट इज़ ऑलवेज सोल्ड ऑन लाइसेंस बेसिस। तो अपना सिस्टम वैसे ही है या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में नेगोशिएशन करके हम एक प्राइस डिसाइड करते हैं और फिर हम उनको लाइसेंस देते हैं? हाउ डज़ द प्राइसिंग वर्क? कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलता है? गुड सर, यस सर, वेरी गुड क्वेश्चन सर। सो नॉर्मली हमारा जो सास मॉडल है, टिपिकली जिस तरीके से इंडस्ट्रीज में है, सेम मॉडल है कि हम उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और दे यूज आवर सॉल्यूशन टिल दे पे। एंड वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मिनिमम 3 साल से लेके 10 साल तक का मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट अभी है, जो लीगल टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होते हैं। और जो मेजोरिटी हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं, तो टेंडर बेस में ही वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट विथ अमाउंट्स की हर साल कौन से साल में क्या पेमेंट रहेगी, क्या बिलिंग रहेगी, हमारी क्या सर्विसेज रहेगी, बहुत डेप्थ एनालिसिस के साथ वो लिखा गया होता है, और उसी बेस पे हम हमारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करके हमें रेवेन्यू मिलता है। बिल्कुल। अच्छा भावेश जी और एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है SaaS कंपनीज के लिए, SaaS कंपनीज में R&D बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपका जो आईपी होता है प्रोडक्ट का। तो सर मुझे बताइए अपने टीम में कितने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लोग हैं और सर इसमें आपका क्या योगदान है? बिकॉज़ यू सेड यू स्टार्टेड द कंपनी तो सर R&D को लेके आपके क्या थॉट्स है कि ये प्रोडक्ट जो आपने बनाया है ये डेफिनिटली अगर बहुत सॉलिड है, कोई कॉपी नहीं कर सकता तो आपके लिए अच्छी बात है। तो मुझे बताइए R&D हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एंड हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं? सर, माई सेल्फ आई एम अ प्रोग्रामर। मेरा कोडिंग एंड डेटा इज माई पैशंस। मैं दिन में एक बार भी डेटा नहीं देखा, नॉर्मली लोग बोलते डेटा देखा नहीं जाता बिकॉज वर्चुअल सिनारियो, बट सर मुझे डेटा देखता नहीं हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। तो डेटा इज माई पैशन, एंड ओके, डेटा का बेस्ट वे यूटिलाइज करके हमारे कस्टमर्स को कैसे बेनिफिट मिले, ये चीज पे हमारी कंपनी के टीम, टॉप मैनेजमेंट एंड R&D टीम ऑलवेज फोकस करती है। मैं भी उसके एक पार्ट हूँ कि मार्केट के रिसर्च और क्लाइंट को सुनते रहता हूँ, फीडबैक लेते रहता हूँ, वहाँ का रिव्यूज लेके हम लोग इम्प्रूव करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करते जाते हैं, क्योंकि डेटा के साथ सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है। डेटा डिस्क्लोज न होना चाहिए, कहाँ पे भी वो हैकिंग ना होनी चाहिए, तो हमें वेरी वेल बी कंप्लाइन ऑन दैट। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारे पास सर अराउंड 60 डेवलपर की टीम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, जिसमें 5 डेडिकेटेड पीपल जो है वो R&D में भी काम करते हैं कि नई नई चीज। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंडियन गवर्नमेंट ने जो लास्ट रिफॉर्म हुई थी पॉलिसीज, वो 1968 में हुई थी लास्ट पॉलिसी, और अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 40 साल के बाद हुई 2022 में। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम 22 में से चेंज हो रहा है, NEP 2020 जिसे बोला जाता है।
तो हमें ये हमारे रिसर्च टीम को आइडिया आ गया था कि 2020 से ड्राफ्टिंग हो रहा है और फ्यूचर में इसका आने वाला है पूरा प्लानिंग। तो हमने वो रिसर्च साथ साथ हमने डेवलपमेंट भी चालू कर दिया था कि हमारी ERP NEP रेडी थी और हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया 2023 में। सो दिस इज द वन। सेकंड, हमारी पास 2 पैटेंट है। एक हमने 2021 में एक पैटेंट डिजिटल लर्निंग में पब्लिश हो चुकी है और दूसरा जो मेरा पैटेंट है वो क्वेश्चन पेपर डिलीवरी सिस्टम जीरो टच के करके प्रोडक्ट है, वो उसी में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे वो बारे में। तो इसमें भी हमारी पैटेंट है। तो हमारी जो टीम रिसर्च करती है वो प्रोडक्ट तो बनाती है, बट प्रोडक्ट के साथ साथ उनकी सिक्योरिटी भी देखती है कि ये पैटेंट हमको मिले और हम उनका फ्यूचर में बेनिफिट भी ले सके, ताकि हम वो चीज कोई कॉपी ना करें। नहीं, बिल्कुल। मेरे को और एक बात बताइए सर कि अभी थोड़ा-सा मार्केट के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि सर SaaS मार्केट अपॉर्च्युनिटी जो अपने वर्टिकल में हम लोग काम कर रहे हैं, आपने बोला एजुकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, तो स्पेसिफिकली अगर एजुकेशन वर्टिकल की बात करें तो सर ये जो NEP पॉलिसी आपने बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपने सही कहा कि अभी काफ़ी सिलेबस बदलेगा, काफ़ी ग्रोथ मिलेगा एजुकेशन प्लेयर्स को। तो सर हाउ बिग इज़ दिस मार्केट? अपना अभी जो टॉप लाइन है और मान के चलिए अगले 2-3 साल टोटल मार्केट का ग्रोथ देखिए, तो आपको क्या लगता है कि दिस मार्केट विल ग्रो वेरी फास्ट इन द नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स एंड आप उसको कैसे कैपिटलाइज करोगे? सर अभी अगर मार्केट की बात करें तो एज पर द UGC कॉलेजेस है, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के हिसाब से एक तय है कि भाई 2030 तक कंपलसरी सारी यूनिवर्सिटीज को NAC एक्रेडिशंस एक्वायर करना है, उनको कंप्लायंस करना है। और NAC है नेशनल एक्रेडिशंस बॉडी जो गवर्नमेंट के अंडर में है। जो यूनिवर्सिटीज ये नहीं करेगी या तो उनको कंपलसरी कंप्लाइन करना है या नहीं, या तो स्टॉप करना है और किसी और कंप्लायंस वाली यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन हो जाना है। तो NAC में सर बहुत एक ERP का वेटेज दिया गया है अराउंड 20% के आसपास की आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ERP कितनी इंप्लीमेंट हुई है। क्योंकि सबसे NEP का एक कंसेप्ट है MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज। तो कोई भी जो स्टूडेंट्स है वो मल्टी यूनिवर्सिटीज या मल्टी कॉलेज से सब्जेक्ट ले सकते हैं मेजर एंड माइनर के हिसाब से विथ MDC। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है कि एवरी हायर एजुकेशन स्टूडेंट आर स्टडी इन इंडिया, दे हैव टू बी ABC नंबर ID, एंड वो जो पढ़ रहा है उनका जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है वो वहां पे अपलोड होना चाहिए। तो ये ERP के बिना पॉसिबल नहीं है। सो एवरी इनिशिएटिव मस्ट हैव टू कंप्लायंस विद द ERP सॉल्यूशंस। एंड हम तो अभी बहुत छोटे लेवल पे मतलब 40 इनिशिएटिव्स है, फिर भी हम मार्केट लीड कर रहे हैं ये इंडस्ट्रीज में। तो हमारा टारगेट है कि भाई इसमें हम मैक्सिमम 3 साल में हम जाके ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव्स को एक्वायर करें। और नंबर्स के हिसाब से भी बहुत एडटेक तो $300 मिलियन 2018 तक का बिलियन डॉलर का मार्केट है एडटेक में। ERP में भी $1 बिलियन का मार्केट है 2028 तक। तो ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसमें हमने अब तक रिसर्च करके जो प्रोडक्ट डेवलप किया है, कस्टमर ने हमारा एक्सेप्टेंस कर लिया है, काफी इतने क्लाइंट्स है। तो नाउ आवर टाइम इज हाउ वी कैन फास्ट रीच टू देम, मार्केट कितना क्विकली करे, हमारा एक्सपांशन क्विकली करे और मार्केट को कैप्चर कितना करे। हमारा पूरा फोकस वही चीज पे है। तो डेफिनेटली हमारी टीम इसको बहुत हाईली एंड प्रोएक्टिवली एक्ट करेंगे और उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम मार्केट कैप्चर करेंगे। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने भाभी जी। सर मुझे बताइए कि आप 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, मैं आपके प्रोस्पेक्टस में देख रहा था। सर उसके बारे में ज़रा बताइए, ये कंपनी जो प्रोडक्ट जो है वो है ब्रेन्स ऑफ ORG और ज़ीरो टच डैश। सर इसके बारे में थोड़ा-सा वेरी गुड सिंपल तरीके से आपको बताइए, व्हाट डू दीज़ प्रोडक्ट्स डू एंड व्हाट इज़ द टारगेट ऑडियंस? वेरी नाइस सर। सर मैं आपको बताऊं बड़ा बड़ा तो हम इनिशिएटिव्स के साथ जो काम कर रहे हैं, तो इनिशिएटिव्स में आपको वेरी वेरी क्लियर की जो एग्जाम्स होती है उनके क्वेश्चंस पेपर प्रोफेसर्स निकालते हैं। प्रोफेसर एक क्वेश्चन पेपर 3 लोग निकालते हैं, वो इनिशिएटिव्स में कंट्रोल ऑफ एग्जामर को सबमिट करते हैं एग्जामिन को। फिर वो वहाँ की वाइस चांसलर जो टॉप बॉडी होती है वो उनके हिसाब से पेपर चूज करते हैं। वो प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट के लिए जाते हैं और वो पेपर फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जहाँ एग्जाम्स लिया जाती है और वहां पे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। तो ये सारी अभी मैन्युअल प्रोसेस चल रही है काफी हाँ, जगह पे, और हाँ, कॉस्टिंग भी आ रहा है 90 रुपीज के आसपास पर
क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स के हिसाब से। और एक अच्छा। सबसे वहां पे प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो सकते हैं, राइट। हाँ। तो चांसेस के हिसाब से और काफी पेपर लीक भी होते हैं। तो हमने 3 साल पहले इस पे रिसर्च किया कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, 2 सिनारियो सिक्योर कैसे कर सकते हैं, कॉस्टिंग कैसे कम ला सकते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन पेपर डिलीवरी सिस्टम बनाया जो हमने मार्केट में 3 साल पहले रोल आउट किया, जहां से हमें अभी रेवेन्यू आ रहा है। टीचर्स पेपर बनाते हैं, वो डायरेक्ट सिस्टम पे आते हैं और कॉलेज में 3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। वो ओके। लोग मैन्युअली प्रिंट निकालते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें भी एक रिस्क रहा है कि भी वो 20 दिन का टाइम हमने 3 मिनट 3 घंटे में कर दिया, स्टिल इज हाँ। रिस्क। तो नाउ हाँ। हमारी टीम दो साल पहले रिसर्च में किया कि भाई हम इसको जीरो तक कैसे लेके जाए। और वो रिसर्च को हमने 2024 में पेटेंट फाइल किया, मशीन बनाना शुरू किया और अभी हमारा मशीन पायलट वर्जन बन गया है। हमारी हाँ। पेटेंट 2 महीने में के आसपास आ जाएगी। तो ये जो है कंप्लीटली जीरो टच इसलिए बोला जाता है कि पेपर निकला टीचर्स के पास हम्म। और क्लासरूम में पहुंचा, उसके बीच में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई चांस नहीं है लीकेज होने का। सो इसकी वजह से ये जीरो टच है कि कंप्लीटली अच्छा। सिक्योर्ड है। एंड ओके। सबसे ब्यूटी बात यह है कि जो मैनुअल प्रोसेस है उससे 60% कम कॉस्ट में ये प्रोडक्ट होगा। तो अफोर्डेबल भी है, सिक्योर्ड भी है और रिलायबल भी है। तीनों कॉम्बिनेशन के साथ हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारा इसमें ऑडियंस टारगेट जो है वो यूनिवर्सिटी है, जो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स के लिए, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स ले रहे हैं। तो ये दो हमारा ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है ये जीरो टच के लेके, जिसमें हम आईओटी मशीन्स, एआई के साथ मशीन्स बना रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। दूसरी ठीक। जो प्रोडक्ट है तो सर ब्रेनजोर करके, हम्म। तो दूसरी जो आपकी बताए ब्रेनजोर करके, तो वो प्रोडक्ट सर हमने नई लॉन्च नहीं है, हमने 2021-22 में हमें ये प्रोडक्ट को स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मालूम था कि ये एनईपी के हिसाब से बहुत बढ़िया चलेगा। तो अभी एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ये साल से स्टार्ट हो रहा है सभी यूनिवर्सिटीज में। तो उनके लिए हमने ऑनलाइन कोर्सेज है, जो स्टूडेंट्स है वो ऑनलाइन कोर्सेज में से ले सकते हैं, 1 या 2 क्रेडिट वाले। तो ये प्रोडक्ट का अभी थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू आ रहा है। इसको भी हम आगे जाके हाई लेवल पे स्केल करेंगे मार्केटिंग के साथ। ये पूरा हमारा B2C प्रोडक्ट है, डायरेक्ट स्टूडेंट्स जो है वो अच्छा। हमारे टारगेट कस्टमर्स है, ना तो ओके। कॉलेज ना तो यूनिवर्सिटी, बट डायरेक्ट स्टूडेंट्स आर अवर टारगेट ऑडियंस है। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझाया भावे जी। भावे जी, अभी मेरे को बताइए कि हमारा जो बिजनेस है, ये SaaS का बिजनेस है, यूनिवर्सिटी का और ERP का, डज इट वर्क ऑन सम ऑर्डर बुक काइंड ऑफ सिस्टम? लाइक इतना आपको पता है कि इतना पाइपलाइन है, तो उसके हिसाब से आपका रेवेन्यू बिल्ड होता है। और सर, नॉर्मली मेरे को एक बात बताइए कि मैं और भी एक दिख रहा था कि आपका कोई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। आई थिंक वो भी मेंशन किया है प्रोस्पेक्टस में। तो सर, उसके बारे में हमको बताइए, हाउ बिग इज दैट कॉन्ट्रैक्ट? उससे किस प्रकार का रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट करेंगे आगे? गुड सर, डेफिनेटली जैसे आपने बताया सास मॉडल है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे पास 3 साल से 10 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला के, तो उसमें हमारे नेक्स्ट 2 साल में जो हमने रेवेन्यू एनकेस करना है, तो वो हमारी ऑर्डर बुक है 55 करोड़ की। तो ओके। नेक्स्ट 2 साल ओके। में हमारे पास वेरी हैंडसम ऑर्डर बुक है कि भाई 55 करोड़ हमने ऑलरेडी सेल्स बुक कर दी है। और वो सॉफ्टवेयर ऐसे है जो इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं और वहां से हमें रेवेन्यू भी आने वाली ठीक। है। और कुछ रेवेन्यू ठीक। तो ऑलरेडी 2 साल 3 साल से आ भी रही है। हाँ। तो ये आगे का भी कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन हमने ये 2 साल के 3 साल के ही मेंशन किया हुआ है। सेकंड है हमारा, जो आपने जैसे बात किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो हमने प्रोस्पेक्ट पे बताया हुआ है। तो सर ये हमारा रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2025 में मई में हमारा वर्क हुआ है। हमने वहाँ इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया। तो वो कंसेप्ट है कि पूरा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, जिसके अंडर में मध्य प्रदेश की 18 यूनिवर्सिटी आती है, 2500 कॉलेजेस आती है, वो सबका एडमिशन प्रोसेस है। तो एडमिशन अच्छा। प्रोसेस में एवरी स्टूडेंट्स ऑन एमपी गवर्नमेंट्स में जो जिसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है उनको, या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है जो यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत है, वो सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन उनका राउंड एंड एडमिशन हो जाता है।
तो बेसिकली रनवे काफी अच्छा है, इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सर मुझे बताइए जी कि सर। टिपिकली अगर मैं पूछूं कि नॉर्मली सैस मार्केट में जो कस्टमर है उसका पेमेंट साइकिल क्या है, नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के हिसाब से कब कब आपको कैश फ्लो आता है, लाइक ये जो सारे यूनिवर्सिटीज है, सारे स्टूडेंट्स है, आपको क्या अपफ्रंट कुछ पैसा मिलता है या बेसिकली एक बार द कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट्स और आप सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हो तो फिर उसके बाद कैश फ्लो शुरू होता है, तो साइकिल हमारे लिए कैसे काम करता है? सर मैं आपको दो सिनारियोस बताऊंगा। जो प्राइवेट्स हमारे कस्टमर्स है, एजुकेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है, तो जब हमारा ऑर्डर साइन होता है तो हमें कुछ अपफ्रंट एक पेमेंट होती है, 10-15%, 20%, वो डिपेंड ऑन ऑर्डर साइज के हिसाब से। नॉमिनल अमाउंट, एक टोकन अमाउंट। बाकी का जो पेमेंट है वो फेज वाइज है कि भी आपका इतना इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद एक पेमेंट मिलता है, बिलिंग के बाद फिर आपका एएमसी हम्म। का जो है वो पेमेंट है। तो वहां की जो साइकिल रहती है वो 2 से 3 महीने की हमारी बिलिंग साइकिल रहती है, और एडवांस भी उस वहां पे मिलते हैं। ओके। कमिंग टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में हमारा जो न्यू इम्प्लीमेंटेशन है, तो गवर्नमेंट में सर ऐसा होता है कि फर्स्ट कंप्लीटली यू नीड टू मेक अ लाइव। फिर लाइव हो जाने के बाद आपका गो लाइव फेज पे माइलस्टोन जो टेंडर में डिफाइन है, उसी के बाद आपका इन्वॉइसिंग रेज होता है। इन्वॉइसिंग के बाद आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनते हैं सारे जगह पे से उनका रिव्यू लेके। तो वो पेमेंट में थोड़ा डिले होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट हाँ। प्रोसेस है। तो वहां पे बिल्कुल। हमारी करीबन 4 to 3.5 महीने से 4.5 महीने के बीच की एवरेज हमारी साइकिल रहती है। तो बरोबर। हमें थोड़ा वर्किंग कैपिटल की ऑलवेज रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि पेमेंट हमारा जो बड़ा एक्सपेंसिस है वो हाँ। सैलरीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम बराबर। ऑलमोस्ट एडवांस पे करते हो, और हाँ। या तो मतलब ऑन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, और पेमेंट गवर्नमेंट्स के साइकिल के हिसाब से हमें थोड़ी वर्किंग कैपिटल लगती है। बरोबर। नहीं, ये एकदम बराबर आपने बोला, क्योंकि मैं देख रहा था कि सर आपके डेटर्स अगर हम देखें एज़ अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो सर यही कारण है कि गवर्नमेंट से पैसा तो ज़रूर आता है लेकिन थोड़ा इट कम्स लिटिल स्लोली, सो दैट इज़ द रीज़न। ठीक यस, है? सो आज तक बट सर हम जो काम कर रहे हैं उसमें एक भी बैड डेट नहीं हुआ है। तो लेकिन हाँ, लेट आते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रोसेस है, उसमें काफी चीज अप्लाई हो ओके। जाती है। अच्छा, अच्छा। नहीं ठीक है सर, समझ गया मैं। सर दूसरी बात मेरे को बताइए कि अभी हम लोग आईपीओ कर रहे हैं सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज का इंटरव्यू का सर, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर यू बिकॉज़ आपने मेहनत की है सर, इट इज़ गेटिंग प्लेड ऑफ। सर बताइए हाउ मच मनी आर वी नाउ गोइंग टू रेज़ फ्रॉम द मार्केट और ये किस लिए हम यूज़ करेंगे? सर हमारा जो अभी है टोटल हम रेज कर रहे हैं 24.42 CR। तो उसमें हमने मेजर 4 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। पहला ऑब्जेक्ट है जो मैंने जीरो टच वाली, जो हमारी पैटेंटेड प्रोडक्ट है, जिसका हमने पायलटिंग कर लिया है। वो पूरी हमारी प्रोप्राइटरशिप मशीनरीज है। पूरे इंडिया में अभी कोई अवेलेबल नहीं है, वी विल बी द फर्स्ट। एंड हमने उसमें इंटरनेशनल पेटेंट भी फाइल कर लिया है। तो वो मशीनरीज बनाने के लिए हमने सॉफ्टवेयर तो बना दिया, काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने खुद से भी किया, करीबन 1.5 CR जैसे प्लस हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। तो वो 3.75, 3,75,00,000 हम वो मशीन के लिए यूज करेंगे। 150 मशीन हम डिप्लॉय करेंगे। और इसका हम रेवेन्यूज जो है वो पर स्टूडेंट्स पर पेपर के बेसिस पे हम ये चार्ज करेंगे। हम मशीन बेचेंगे नहीं कस्टमर्स को, हम डिवाइस एज ए अच्छा। सर्विस देंगे। ओके। तो मशीन भी हमारी प्रोप्राइटरी रहेंगी। हमारा रेवेन्यू जो है वहां से पर स्टूडेंट्स पर पेपर बेसिस पे आएगा। ओ समझ गया। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है, डेफिनेटली हम स्केल करेंगे अभी। तो स्केल के साथ टीम भी बढ़ानी पड़ेगी। तो टीम के लिए हार्डवेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड सर्वर्स जो है हमारी मशीनरीज बोला जाती है, हमारे हथियार बोले जाते हैं। तो वो चीज को हम बाई करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा अराउंड 2,60,00,000 का हमने ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है। बहुत डिटेल में प्लानिंग है, कौन सा सर्वर, कौन सा मशीन, कंप्यूटर लेंगे हम। थर्ड है, हमारा गवर्नमेंट्स में भी काम है। तो वहां पे हमें टेंडर बिड करने होते हैं। तो टेंडर बिडिंग के टाइम पे ईएमडी लगती है, अर्नेस्ट डिपॉजिट पहले, फिर टेंडर मिल जाता है तो बैंक गारंटीज लगती है। तो वो सारे के लिए हमने अराउंड 4 करोड़ का एक रखा हुआ है कि भाई ये फंड हम बैंक गारंटीज और ईएमडी में यूज करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम। फोर्थ है लास्ट, हमारा वर्किंग कैपिटल जो हमने डिस्कस किया वो हिसाब से वर्किंग कैपिटल की डेफिनेटली बिजनेस में जरूरत रहती है। तो 8.58 करोड़, 8,58,00,000 रुपीज हम वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे। तो ये हमारा मेजर 4 ऑब्जेक्ट्स है जो हमने डिफाइन किया है। रेस्ट ऑफ द जीसीपी
is the fund what we are planning from IPO. नहीं, ठीक है। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझा। भाभी जी, अभी मेरे को एक बात बताइए, ये जो ज़रा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए फाइनेंशियल्स तो अपनी जगह पे है, लेकिन आप SaaS प्रोडक्ट्स में हो, अभी कस्टमर आपके प्रोडक्ट से बहुत खुश है, आई मीन दे आर वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी एंड द सर्विस ऑफ द प्रोडक्ट। सर, ये हमारे धंधे में हाउ डू यू ऐड वैल्यू टू द कस्टमर? कस्टमर हमको हमारा रिपीट बिज़नेस क्यों देता है? हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहता है? तो एनीथिंग क्वालिटेटिव व्हिच यू कैन से दैट वी डू अ स्लाइटली बेटर जॉब एज़ अ SaaS कंपनी? 1-2 क्वालिटेटिव पॉइंट्स हमारे लिए बताइए। सर, मेरे पास 4 क्वालिटेटिव पॉइंट्स है जिससे अभी हम डिफर हो रहे हैं मार्केट से, और उसी वजह से हमें रेफरल बिजनेस मिल रहा है ज्यादातर। तो नंबर 1 है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ज्यादातर लोग सॉफ्टवेयर लेते हैं तो क्या होता है, 2 सिनारियोज चाहिए कि वो भी बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो आपका सॉफ्टवेयर है वो स्केलेबल होना चाहिए कि भाई मैं 5 हुँ, साल के बाद भी यही सॉफ्टवेयर, यही डेटा जो आज एफिशिएंसी के काम कर रहे हैं वही सेम एफिशिएंसी के काम करे। सेकंड है हमारी सिक्योरिटी। जो डेटा की सिक्योरिटीज है वो हम हाईली कंप्लायंस करते हैं, गवर्नमेंट्स में जो भी डिप्लॉय करते हैं वो वीएपीटी इज अ कॉमन थिंग नाउअडेज, वो तो कर लेते हैं। सेकंड, सर्टिन सर्टिफाइड। हाँ, हमारा हर सॉफ्टवेयर लेवल पे वहां पे हमारी सर्टिन सर्टिफाइड सिनारियोज रहते हैं। एंड द थर्ड लेवल पे जो हम है, कस्टमाइजेशन, क्योंकि सास में सबसे चैलेंजेस लोगों को आता है कि भाई कस्टमाइजेशन लोग कम करके देते हैं, या तो हाँ। करके देते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो हमारा जो फोकस है, हम वेरी क्विकली कस्टमाइज करके देते हैं, और जो इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसी से हम उनको हैप्पी रखते हैं, ताकि उनका भी बिजनेस ग्रोथ हो रहा है तो कंटिन्यूसली उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। एंड द लास्ट वन, जब भी नए कस्टमर हम ऑन बोर्ड करते हैं तो लोगों को 2 चैलेंजेस होती है नए कस्टमर को, कि भाई मेरा पुराना डेटा का क्या, एंड हाँ, इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं और कब होगा। तो हमारी पास जो डोमेन लेवल की, डोमेन नॉलेज की जो टीम, एक्सपर्ट टीम है, उनका एक्सपर्टाइज ये है कि पुराने डेटे का भी माइग्रेट करते हैं नए सिस्टम में, और ताकि हम जो एआई बेस्ड हमारा ईआरपीज है, तो हम उसका पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से उनको सजेस्ट भी कर पाए। एंड दूसरा, डोमेन नॉलेज है तो हम इम्प्लीमेंट फास्ट करते हैं। हमारे जो टीम है हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट भी करती है, उनको सजेस्ट सॉल्यूशंस भी देती है कि आप बिजनेस में ये प्रोसेस भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये जो वेरियस यूनिक यूएसपी हमारी है, उसकी वजह से हमें क्लाइंट प्रीफर करते हैं कि भाई हाँ, इससे हम लॉन्ग टर्म कनेक्टेड रहे। और हुँ, हमारी टीम जो है कंटिन्यूसली नई रिसर्च टीम है जो नई नई चीज सामने से लाती है। एआई बेस्ड हमने अभी लाया है रिसेंटली, हम क्यूआर कोड बेस्ड भी सिस्टम्स करते हैं। तो ये उनका यूजर फ्रेंडलीनेस एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं। तो ये सारी चीज की वजह से हमारे कस्टमर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझा है भावी जी। भावी जी, अभी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। नंबर्स तो FY 25 के लिए मैं देख रहा था, काफ़ी अच्छा है। करीबन 13 करोड़ का रेवेन्यू जो 10.2 करोड़ था पिछले साल, और प्रॉफिट आपका करीबन 4.17 करोड़ है, जो पिछले साल करीबन 3.46 था। तो सर, मोटा-मोटी व्हाट वाज़ द मेन रीज़न? यानी ऑफ कोर्स टॉप लाइन ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ी है, बट कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले या ज़्यादा काम आपने किया या ज़्यादा द प्रोडक्ट मिक्स वाज़ मोर फेवरेबल। व्हाट वाज़ द रीज़न फॉर दिस? और आगे विदाउट गिविंग नंबर्स भावेश जी, अभी तो हम सितंबर में हैं, बट FY 26 में होपफुली, आई मीन आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से हमको बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये मोमेंटम इस साल भी जारी रहेगा? सर, आपने हमारे 2 साल से अगर देखेंगे तो हमारा जो इससे पहले का टाइम था, हमारी टीम रिसर्च कर रही थी प्रोडक्ट। मैंने बताया कि एनईपी जो हमारी इम्प्लीमेंट हुई 2023 में, उनका जो रिकरिंग बिजनेस भी हम आ रहा है, तो और नए क्लाइंट्स हम एक्वायर कर रहे हैं। तो 2 रीजन है, एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर में वैल्यू एडेड हुई तो उनका रेवेन्यू बढ़ा, न्यू ईआरपी सॉल्यूशंस की वजह से, एनईपी की वजह से, एआई की वजह से। दूसरा, हमने नए कस्टमर एक्वायर किए। तो ये 2 मेजर रीजंस की वजह से हमारी टॉप लाइन बढ़ी। और जैसे आपकी टॉप लाइन बढ़ती है तो आप फाइनेंशियल देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमारे एक्सपेंसेस जो है एम्प्लॉयज के, वो उतने ज्यादा बढ़े नहीं है। तो बिल्कुल, मार्जिन्स भी बिल्कुल। मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। एंड फ्यूचरिस्टिक्स डेफिनेटली हम अभी H1 में है, फर्स्ट हाफ अभी अभी ऑलरेडी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको सर, जैसे हमने ऑर्डर बुक बताया, तो ऑर्डर बुक हमारे पास काफी हैंडसम ऑर्डर बुक है 55 करोड़ की, जो हमने नेक्स्ट 2.5 ईयर में हमारा उसमें रेवेन्यू बिलिंग हो जाएगा। तो इस साल के हिसाब से भी आप मेरे से बेटर सर जज कर सकते हो कि वो हम क्या नंबर अचीव कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली मार्जिन तो
मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिस तरीके से सिस्टम है, हमने कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस दिया हुआ है, हमने कस्टमर को अभी तक जो बिडिंग पेमेंट कोटिंग किया हुआ है वो भी प्लान करके वो इस हिसाब से है कि जहां मार्जिन भी मेंटेन कर सके। तो सर मोटा मोटा यू कैन जज व्हाट वी कैन अचीव सर। नहीं, आई थिंक भावेश जी, और एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो फाइनेंशियल कम्युनिटी देखती है, शायद आपको भी पता है कि आपने सही कहा कि एक बार प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो गया सैस कंपनी के लिए, तो उसके बाद वो R&D का खर्चा तो होता नहीं है जितना टाइम आपने लगाया, तो ऑपरेटिंग लिवरेज विल आल्सो प्ले आउट, यानी आपका रेवेन्यू जो बढ़ेगा, आपके खर्चे उतने नहीं बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ग्रोथ विल बी क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो आई होप दिस थिंकिंग इज राइट। Yes, absolutely, sir. You are very well aligned on the thought, sir. भाभी जी, आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बिजनेस में, सैस के बिजनेस में विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपने बोला अच्छे हमारे पास ऑर्डर्स है, पर सर नॉर्मली इन आवर बिजनेस सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? व्हाट इज द रिस्क? आई मीन, इज इट दैट the software doesn't work properly, or there is some kind of issue at the client's end, कुछ सर्विस में प्रॉब्लम है? तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बताइए, बिजनेस में for a SaaS company, what is the most important risk? If the product is, you spend a lot of time on a product and it does not succeed, that is one of the risks. But other than that, sir, what are the main risks in this business which you have, I know, managed so well up till now? सर एनी बिजनेस है या कोई भी चीज है तो रिस्क तो है ही। बिजनेस इटसेल्फ इज अ बिग रिस्क, बट डेफिनेटली वी हैव टू वर्क। हमारी कंपनी ऑलवेज स्वॉट एनालिसिस पे, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड हमारे थ्रेट्स पे हम काम करते रहते हैं कंटिन्यूसली। अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आती रहती है, बट सबसे बड़ा काम करना होता है थ्रेट्स पे। तो जो बराबर। थ्रेट है वो रिस्क है। तो हम थ्रेट्स पे हमारे बिजनेस में ये रहते हैं, लोगों को जो ये होती है मार्केट के न्यूज पे, जैसे आप आज हाँ, ने काफी बार आपने सुना होगा कि एआई आ गया, तो एआई हाँ, आने की बराबर, वजह से काफी जगह पे आईटी में डाउनफॉल आएगा, ये आएगा वो बराबर। आएगा। तो सर कुछ ह्यूमर्स, जो रूमर्स फैलते हैं वो अलग होती है, रियलिटी कुछ अलग होती है। तो ऐसे हमें मार्केट में लगता है कि ये थ्रेट्स है, बट एक्चुअली में वो अपॉर्चुनिटी देके जाता है। तो हमारे हाँ, बिजनेस में ये रूमर्स के सामने खेलना वो सबसे बड़ा हाँ, थ्रेट है, क्योंकि वो हमारा जो बिजनेस ही कंप्लीटली डिपेंड है ह्यूमन पे, एम्प्लॉय पे, करेक्ट। राइट। तो हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है वो, मार्केट के रूमर्स के हिसाब से उनका भी कभी कभी दिमाग ये हो जाता है कि भाई अभी ये चल रहा है वो चल रहा है। जैसे आपको अभी न्यूज काफी देखे होंगे कि भाई यूएस में आईटी का ये इश्यू चल रहा है, H1 पे ये चल रहा है, हाँ, ताकि हमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज वी आर अ मेड इन इंडिया कंपनी, फॉर अ करेक्ट, मेड फॉर इंडिया। बट करेक्ट। लोगों को लगेगा कि दिस इज द बिग रिस्क, राइट, आईटी इज गेटिंग डाउन, बट सर इंडिया के लिए जो सिनारियोज है बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है। जितने भी इंडियन कंपनियां इंडिया के लिए काम कर रही है उसके लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है। तो हमारा सबसे बड़ा रिस्क है कि जो रूमर के सामने हमें अपना मन डिगाए बिना खेले रहना। सेकंड है सर, जो ऑलवेज आती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो हम ये चैलेंज को अभी तक ये करते हैं कि हमारी R&D टीम दो तरीके से है। एक है जो डोमेन नॉलेज की रिसर्च करती रहती है कि मार्केट में क्या हाँ, नया आने वाला है, हमारे सॉफ्टवेयर में हम क्या ऐड करें। और दूसरी बराबर। ये होती है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो हम हाँ, हमारे सॉफ्टवेयर में एडॉप्ट कर ले, और ताकि जल्दी से जल्दी मूव हो सके। तो बराबर। ये चैलेंजेस, हमें रिस्क तो ऑलवेज रहता है कि अगर हमने नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट नहीं की तो हम थोड़ा हाँ, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद थोड़ा पीछे जा सकते हैं। तो हम अच्छा। इनको अभी तक ये टेकल करते हैं कि भाई हमारी कंटिन्यूसली जो सेकंड रिसर्च टीम है वो फोकस करे और हमारी टीम को वो ट्रेन करे, क्योंकि आपको एम्प्लॉय को भी अपग्रेड करना पड़ेगा वो नई बराबर। टेक्नोलॉजी को एडप्ट करने के लिए। तो ये जो सर मुझे दो बड़ा रिस्क लगता है, और हम हम्म, इनको अच्छी तरह से समझते हैं, तो ताकि हमारी HR टीम ये चीज को लेके फोकस है कि एम्प्लॉयज को कंटिन्यूसली कैसे ट्रेन किया जाए, नए नए लोग को कैसे लिया जाए, और जेन जेड जनरेशन जो है, अभी न्यू हाँ, एम्प्लॉयज जो है जिसको जेन जेड बोलते हैं लोग, तो हमें उसे उनके साथ काम करना है। तो हाँ, हमारी इंडस्ट्री यंग यंग पीपल की है। तो व्हेन यू बराबर, वर्क विद द यंग पीपल, तो आपको कंपनी को ऑलवेज यंग माइंडसेट को बना के रखना है। भागो बराबर, दौड़ो स्केल करो। आप एक बार बूढ़े हो जाते हो तो एक एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लोगों की कम हो जाती है। तो हमारी कंपनी, बराबर, वी कीप मेंटेनिंग कंप्लीटली यंग फॉर एवर। अवर कंपनी को हम थॉट्स राइट। यंग रखते हैं। तो ये चैलेंज को, जेन जेड के साथ काम करने की जो चैलेंज है उसको हम मैच कर पाए। तो मेरे लिए भी एक बड़ी चैलेंज रहती है कि भाई मैं भी मेरे थॉट्स, मेरे विचार इस तरीके से रखूं कि मैं यंग टीम के साथ मिल सकूं, तो ताकि नहीं, गैप कम हो सके।
नहीं आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझाया सर, बहुत अच्छा लगा भाविक जी आपसे बात करने को। और सर मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. And all the members and the visitors and the people are looking into my podcast and my scenario. Thank you so much, everyone.